morning, students. Students, as you know that in previous video I was discussing about genetic code, and I told you that how George Gamow explained that there is a relationship between the sequence of the nucleotides and the sequence of the amino acids present in a polypeptide or a protein. And he also told that there is a sequence of three nucleotides, okay, which determines the sequence of a particular amino acid. And he told that the sequence of these nucleotides define what will be the combination of the amino acids, all 20 amino acids in a polypeptide or in a protein. And he also mentioned that there are three nucleotides, or there is a sequence of three nucleotides, okay, or we can say that there is a sequence of three nitrogenous bases, for example A, U and G, that is going to determine which kind of amino acid will be found during the formation of the proteins, okay. And I told you that how can we express or how can we write the sequence of the genetic code. As I told you that we have to draw a square, okay. In particular square we have to divide that square in four horizontal as well as four vertical squares, and we have to write all the sequences like UCAG is written vertically. Similarly we are going to write it horizontally too, and a small square we have to write all these four sequences UCAG. Yesterday I told you that, and I told you that how can we combine these sequences and write together. And I told you that which type of combination tells us about which kind of amino acid, or in other words we can say that कि कौन सा वाला sequence कौन से वाले amino acid को कोड करता है, ठीक है. Now there is a chart. Here in the chart you can see that suppose UUU is a combination, it is coding for phenylalanine, ठीक है. Similarly GUU is the at the last one box you can see that GUU, GUC, GUA, GUG, these are coding for the valine, ठीक है. These are some codes, and these codes are coding for the different amino acids you are observing here. So total number of codons are 64, as I mentioned earlier also. There 4 into 4 into 4, 4 4 the 16, 4 the 64 codons are there, and these 64 codons are coding for 20 amino acids, ठीक है. नाउ हेयर अब आप कह सकते हैं कि कोडोन तो 64 है बट अमीनो एसिड 20 है, तो आप देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा कोडोन, ठीक है, एक सिंगल अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल लास्ट वाले बॉक्स पे ही देख लीजिए आप, यहाँ पे 4 कोडोन है, 4 के 4 जो है वो वेलाइन को कोड कर रहे हैं, ठीक है. सो टुडे आई एम गोइंग टू इलाबोरेट द सेम टॉपिक. आई वांट टू डिस्कस सम फीचर्स ऑफ द genetic code, and this topic is very important because most of the time it has been asked in the board examination too. आज मैं बताऊंगा कि कैसे क्या क्या आपके फीचर्स हैं जेनेटिक कोड के. वन बाय वन आई एम गोइंग टू टेल यू दैट, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वेरियस फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग गिवन चेकर बोर्ड आर एज फॉलोज. तो यानी कि जेनेटिक कोड जो हमें मिलते हैं चेकर बोर्ड से, उनके क्या क्या फीचर हैं आई एम गोइंग टू टेल यू वन बाय वन. पहला फीचर, ठीक है, एज सोन इन फिगर 6.12 कोडोन इज ट्रिपलेट. हेयर इन द फिगर यू कैन सी दैट, यानी कि जो कोडोन है ट्रिपलेट की फॉर्म में, यानी तीन नाइट्रोजीनियस बेसिस के सीक्वेंस या तीन न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस एक कोडोन को एक्सप्रेस करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी देख लीजिए, यू 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 फर्स्ट वाला है, सेकंड में आप देख सकते हैं यू सी यू, थर्ड में आप देख सकते हैं यू ए यू, यानी कि एक कोडोन जो होता है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है, ठीक है. आउट ऑफ 64 कोडोन, अब देखेंगे आप ये टोटल नंबर ऑफ कोडोन कितने हैं, 64 कोडोन है, जिसमें से 61 कोडोन जो हैं, 61 कोड ही 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, ठीक है. यानी देयर आर 64 कोडॉन्स, एंड आउट ऑफ दिस 64 ओनली 61 आर कोडिंग फॉर द अमीनो एसिड्स. तो बाकी बच गए कितने, 64 माइनस 1 61, 3 बच गए. जो 3 कोडॉन है ये कौन कौन से कोडॉन है, यू ए, यू जी ए और यू जी ए जी, ठीक है. डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, ठीक है. समझ रहे हैं ना. यानी कि ये तीन जो कोडॉन हैं, ये तीन कोडॉन किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं. तो यानी कि इनको हम बोलते हैं स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेटिंग कोडॉन. तो यानी कहने का मतलब ये कि एमआरएनए का जो आखिरी सिरा होगा, 5 प्राइम से शुरू करेंगे, 5 प्राइम से शुरू करके जो आखिरी सिरा आपका कहाँ जाएगा, जो लास्ट कॉर्नर जाएगा आपका 3 प्राइम पे, जो आपका लास्ट कॉर्नर होगा वहाँ पे आपके इन तीनों में से कोई एक कोडॉन होगा, यू ए होगा या यू जी ए होगा या यू ए जी होगा. एक चीज़ आप देखेंगे कॉमन तीनों में यू कॉमन है, ठीक है. यू ए, यू जी ए और यू ए जी, आपको ये याद रखने पड़ेंगे तीनों. दीज 3 आर कॉल्ड स्टॉप कोडॉन. तो यानी कि एमआरएनए का जो लास्ट सीक्वेंस होगा वो हमेशा इन तीनों में से एक होगा, क्योंकि ये टर्मिनेटर कोडॉन है. ये आपके जब आपके टीआरएनए जब इन कोडॉन्स को पढ़ रहा होगा तो लास्ट में
इसके लिए कोई भी आपका टीआरएनए नहीं होगा। टीआरएनए नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे हेयर यू हैव टू सर्च आउट दैट वेयर आर दीज 3 कोडन्स। तो आप देख सकते हैं थर्ड वाले कॉलम पे, थर्ड वाला जो स्क्वायर है इस पर आप देखेंगे UAA और UAG आपको दिख जाएंगे, दीज आर द स्टॉप कोडन। वहीं फोर्थ वाले पे UGA आपका फोर्थ कोड, थर्ड वाला जो आपका स्टॉप कोडन है वो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है स्टॉप कोडन। ठीक है, UAA, UAG और UGA। ठीक है, तो दीज 3 आर कॉल्ड स्टॉप कोडन्स और टर्मिनेटिंग कोडन। इज इट क्लियर? ठीक है, दूसरा जो फीचर होता है जेनेटिक कोड इज अनएम्बिजियस और स्पेसिफिक। अब इसका मतलब क्या है बेटा, अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को कि अनएम्बिजियस का मतलब क्या होता है या डीजनरेट का मतलब क्या होता है। दो मैं अलग अलग टर्म्स आपको बताने वाला हूँ, दोनों का मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अनएम्बिजियस एंड डीजनरेट, क्योंकि दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। अनएम्बिजियस का मतलब क्या होता है, जेनेटिक कोड इज अनएम्बिजियस और स्पेसिफिक। इट मीन्स वन कोडॉन कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड, यानी एक कोडॉन है वो हमेशा एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एक कोडॉन है AUG, तो AUG केवल और केवल और केवल मीथियोनाइन को कोड करेगा, वो कभी दूसरे अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं अनएम्बिजियस, यानी एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल इधर एग्जाम्पल दिया है CCU कोड्स ओनली फॉर द प्रोलाइन एंड नॉट फॉर एनी अदर अमीनो एसिड। तो यानी कहने का मतलब है CCU एक कोडॉन है, ये हमेशा और हमेशा किसके लिए कोड करेगा, केवल प्रोलाइन के लिए कोड करेगा। तो इसका मतलब होता है अनएम्बिजियस स्पेसिफिक, यानी कोडॉन इज स्पेसिफिक एज सिंगल कोडॉन ऑलवेज कोड फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड। और ये यूनिवर्सल होता है, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में यही होता है, यही नहीं कि ह्यूमन बींग में ही होता है, सब में ही सेम होता है। ठीक है, नाउ दस अगली थर्ड प्रॉपर्टीज़ की ये होती है, सिंस द नंबर ऑफ कोडॉन इज ग्रेटर all the amino acids which exception of the methionine और tryptophan are coded by more than one codon। अब देखिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अब देखो टोटल है नंबर है अमीनो एसिड 20, कोडोन है 61 जो कोड करते हैं। तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं। नहीं समझ रहे हो? यानी कहने का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा कोडॉन एक अमीनो, अब आप लोग कंफ्यूज ना करें ऊपर वाले कमेंट के पॉइंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वाला पॉइंट तो कह रहा था कि एक कोडॉन हमेशा एक अमीनो एसिड को कोड करता है, लेकिन ये तो नहीं कह रहा था कि एक से ज़्यादा कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। वंस अगेन आई एम शोइंग यू द फिगर। तो देखिए यहाँ मैं आपको, अगर आप वर्टिकली लास्ट वाला देखेंगे फोर्थ वन जिसके आगे जी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए GU हमेशा वेलाइन को कोड करेगा। कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि GU आपका सेराइन को कोड कर दे रहा है या आपका ट्रिप्टोफैन को कोड कर दे रहा है, किसी और को कोड कर दे रहा है। तो देखेंगे GU तो हमेशा किसको कोड करेगा, वेलाइन को। लेकिन आप देख रहे हैं वेलाइन जो है ज़रूरी नहीं कि आपका GU ही कोड करेगा, वेलाइन को और भी कोड करने वाले क्या हो सकते हैं, सीक्वेंसेज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 4 सीक्वेंसेज देख रहे हैं, GUU से भी वेलाइन बन रहा है, GUC से भी वेलाइन बन रहा है, GUA से भी वेलाइन बन रहा है और GUG से भी वेलाइन बन रहा है। यानी कि इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डीजेनरेट प्रॉपर्टी, डीजेनरेसी इसको बोलते हैं। यानी एक ही अमीनो एसिड हो सकता है कि एक से ज़्यादा कोडॉन इसको कोड कर रहे होते हैं, लेकिन मीथियोनाइन जो है उसे केवल AUG ही कोड करता है, और ऐसे ट्रिप्टोफैन है इसको भी केवल एक ही कोडॉन जो करता है कोड करता है। इज इट क्लियर? तो एग्जांपल के तौर पे इसने दिया हुआ GGU, GGC, GGA एंड GGG, 4 अलग अलग कोडॉन है ना, एंड ऑल स्पेसिफाई द सेम अमीनो एसिड। तो ये चारों एक ही अमीनो एसिड किसको कोड कर रहे हैं, ग्लाइसिन को कोड कर रहे हैं। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अनएम्बिजियस का मतलब है वन कोडॉन कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड, और डीजेनरेसी का मतलब होता है वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ 3 प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर चुके हैं, अब चौथी प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द कोडॉन इज रीड बाय mRNA इन कंटीजियस फैशन। ठीक है, अब जो कोडॉन होते हैं इनको डायरेक्ट लिखा जाता है। कभी भी आप mRNA को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे तो कोडॉन में जैसे AUG से हमेशा स्टार्ट होता है, AUG क्योंकि आपका इनिशिएशन कोडॉन होता है। ठीक है, तो AUG होगा, उसके बाद CUC होगा, CCA होगा, GGA होगा, GGG होगा, यानी इनके बीच में कोई कॉमा नहीं होगा, कोई पंक्चुएशन नहीं होगा। यानी तो जेनेटिक कोड जो होता है वो पंक्चुएशन लेस होता है, कॉमा लेस होता है, देयर विल बी नो पंक्चुएशन और कॉमा इन द mRNA। ठीक है, अच्छा पांचवी प्रॉपर्टी जो है इसकी, जेनेटिक कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल। तो जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल होता है कहने का मतलब ये कि मोस्टली जितने भी होंगे, जैसे AUG फॉर एग्जाम्पल मीथियोनाइन को कोड कर रहा है ह्यूमन बींग में, तो बैक्टीरिया में भी इसी को कोड करेगा, कुत्ते में भी इसी को करेगा, कैट में भी इसी को करेगा, यानी कोई प्लांट है तो उसमें भी यही कोड करेगा। जेनेटिक कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल, दैट इज पर्टिकुलरली कोडॉन कोड्स फॉर द सेम अमीनो एसिड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। एक एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्ट इन द माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन एंड फ्यू प्रोटोजोन्स, कुछ प्रोटोजोन में डिफरेंस देखा गया है, बट मोस्टली ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, एक जेनेटिक कोड एक ही तरह के अमीनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, तो AUG इज ए कोडॉन विद ड्यूल फंक्शन। AUG जो एक कोडॉन, ऐसा कोडॉन है, ये दो काम करता है एक साथ। ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, व्हाट आर द ड्यूल फंक्शंस ऑफ द AUG?
ठीक है। AUG दो काम करता है, एक तो ये इनिशिएशन कोडॉन का काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हमेशा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस हमेशा AUG से स्टार्ट होती है, ठीक है। यानी कभी भी कोई भी अगर mRNA है तो mRNA में ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो रही, तो यानी सबसे पहला कोड क्या होगा, AUG होगा, ठीक है। ये AUG के लिए कोड करती है। AUG क्या करता है, हमेशा इनिशिएशन कोडॉन का काम करता है। देखो टर्मिनेटिंग कोडॉन या स्टॉप कोडॉन तो आपके पास तीन थे, ठीक है ना, UA था, UAG था, UGA था, तीन थे, बट इनिशिएशन कोडॉन केवल आपका एक ही होता है, ठीक है। इनिशिएशन कोडॉन कौन होता है, AUG होता है। और इसके अलावा जो इसका दूसरा फंक्शन होता है, ये हमेशा एक अमीनो एसिड, केवल हमेशा AUG जो है एक अमीनो एसिड को कोड करता है, इसका नाम होता है मीथियोनाइन, ठीक है। मीथियोनाइन नाम की एक अमीनो एसिड होती है, इसको कोड करता है कौन, AUG। सो देयर आर दीज 6 फीचर्स। आई थिंक यू आर एबल टू इनफ, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड। तो आपने देखा जेनेटिक कोड ऑलवेज एग्जिस्ट इन द ट्रिपलेट फॉर्म, ठीक है। देयर आर 64 कोडॉन एंड आउट ऑफ दीज 61 आर कोडिंग फॉर द अमीनो एसिड एंड 3 आर द टर्मिनेटिंग ऑन स्टॉप कोडॉन। एंड व्हाट आर दीज, UAA, UGA एंड UGA, ठीक है, UAG एंड UGA। दूसरा प्रॉपर्टी मैंने कहा, इट इज़ NABGS का मतलब कि वन कोडॉन कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। सेकंड, थर्ड, आई टोल्ड यू दैट इट हैज़ डीजेनरेसी। डीजेनरेसी मीन्स कि मोर देन वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन अमीनो एसिड। देन मैंने आपको कहा कि mRNA और द जेनेटिक कोड इन द mRNA इज कॉमालेस और पंक्चुअललेस, ठीक है। फिफ्थ, आई टोल्ड यू दैट जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, मीन्स वन कोडॉन कोड्स फॉर one amino acid in most of the living organisms except some protozoans. Last, AUG is a initiation codon and it performs dual function. One, it is initiation codon. Second, it is um, codes for methionine. I think this is enough for today. Thank you. Bye bye.